Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the lecture number 13, week 7, System and Network Administration, Linux based, ITEC 3116. Let's start from the our previous lecture. In previous lecture, we were discussed about the basic Linux Unix commands, where we discuss how you can see uh, mm, by using the basic commands, how you can see the list of files and directories in your current directory. Practically, we demonstrate some commands such as if you want to see the your current home directory, you have to write a command pwd, and if you want to see how many files and folders in your current directory, then you have to write a command ls, uh, list of files and directories uh, in your current directory. After that, in another lecture, we also discussed about the permissions, file permissions, and how many owners and permissions a file have. In Unix and Linux operating system, there are three owners, such as user, who create a file; group user, where you share your file in the groups; and one another user, that is other user, and where all over the world you can share the file all over the world through internet and another any media. And about the permission, every file contains three permissions, such as uh, read, write, and execute. Every file contains these three permissions, and administrator or a user can assign a permission to any other user. If you have many users under your supervision, then you decide who can view a file, who can read a file, and who can amendment in that file. कौन सा यूजर आपकी फाइल को जस्ट रीड कर सकता है, एंड कौन सा यूजर आपकी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है या उसको रीड कर राइट कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डिसाइड करेगा. By using these commands, you strict security on all the users, such as user who is owner of the file, group user, and other. So इन तीन यूजर्स में आपने परमिशंस को जो इनको असाइन करनी है आपके फाइल्स और डायरेक्टरीज के ऊपर, आप थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर, आप एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू आप इन परमिशंस को असाइन कर सकते हैं. ठीक है जी. तो हमने कैसे आप ये परमिशंस जो हैं वो असाइन कर सकते हैं ऑन द डिफरेंट यूजर. वी हैव टू different mods. By using these mod, absolute mod and symbolic mod, you people can change the permissions of any user. किसी भी यूजर की आप परमिशंस को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूजर कैन ओनली write and execute, or if you want user can only read a file, तो आप आपके यूजर के पास पहले जो है वो परमिशंस जो थी आपके यूजर के पास, वो रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ये तीनों परमिशंस आपके यूजर के पास थी.
अब आप चाहते हैं कि यूजर जो है वो जस्ट आपकी फाइल को जस्ट रीड कर सके, तो आप अपने इस यूजर की ये वाली परमिशन जो है, राइट की परमिशन और एग्जीक्यूट की परमिशन को कैसे खत्म कर सकते हैं। इसी तरह ग्रुप यूजर के पास भी परमिशंस हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं। अदर यूजर के पास कोई परमिशन है, उनको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इन परमिशंस को चेंज करने के लिए हाउ कैन वी चेंज फाइल और डायरेक्टरी परमिशंस, आप इन फाइल और डायरेक्टरी की परमिशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं by using absolute mod and symbolic mod। हमने लास्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट मॉड को के जरिए परमिशंस को चेंज करने का वे जो है वो सीखा था, उसके मेथोडोलॉजी को डिस्कस किया था। इन एब्सोल्यूट मॉड also is it is called and well known as a numeric mod। हम यहाँ पे ऑक्टल नंबर्स को यूज करते हुए, ऑक्टल नंबर्स को यूज करते हुए हम अपनी फाइल की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। और आपको पता है ऑक्टल नंबर जो हैं वो 0 to 7, आप 0 से लेके 7 तक नंबर्स के पेयर्स को यूज करते हुए आप अपने यूजर्स की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। आप 0 0, आपको पता है कि ऑक्टल नंबर जो है वो 3 डिजिट पे मुश्तमिल है। यहाँ से ये स्टार्ट होगा 1 2 एंड अप टू सो ऑन 8 तक ये जाएगा, सॉरी 7 तक जाएगा। ठीक है जी, 0 to 7। तो आपकी मैक्सिमम जो फाइल की परमिशंस हैं वो 777 हो सकती हैं, और आपकी किसी भी फाइल की परमिशन जो लोएस्ट परमिशन है वो 000 हो सकती है। अब यहाँ पे 000 मीन्स क्या है? ट्रिपल जीरो अगर आप असाइन कर देते हैं बाय यूजिंग एब्सोल्यूट मॉड, मीन्स नथिंग, nobody can read a file, nobody can write a file, and nobody can execute a file। अगर आपके पास 000 आपने असाइन कर दिए हैं, परमिशन सेट कर दिए हैं बाय यूजिंग एब्सोल्यूट मॉड, तो आपका वो यूजर है, आपका वो ग्रुप यूजर है या अदर यूजर है, वो उस फाइल को ना तो रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं, और ना ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम जी सिंबॉलिक मॉड के बारे में डिस्कस करेंगे। So the agenda for the today's class is again how we can change file directory or directory permissions by using symbolic mod। हम absolute mod के साथ permissions को change करना सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे आपके symbolic mod के ऊपर, कि symbolic mod को यूज़ करते हुए आप अपनी किसी भी फाइल की और डायरेक्टरी की परमिशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। So how many ways to express the permissions in Linux? There are two ways. There are two ways to use commands by using absolute mode and by using symbolic mode। आप absolute mode के जरिए permissions को change कर सकते हैं किसी भी फाइल की और किसी भी डायरेक्टरी की, and by using symbolic mode आप अपनी फाइल और डायरेक्टरी की permissions को change कर सकते हैं। As you know, in the absolute mode, you change the permissions for all three owners। Absolute mode में हम all three owners की permissions को change कर रहे थे। वहाँ पे हम कोई भी numbers लिखते थे, for example chmod, मैं कमांड लिख रहा हूँ यहाँ पे chmod, और यहाँ पे आप वो वाला नंबर लिखते हैं 5 6 7, कोई भी ऑक्टल नंबर लिखते हैं, और यहाँ पे नेम ऑफ फाइल जो है, फाइल नेम, वो आप यहाँ पे लिखते हैं, तो आपकी इस फाइल के ऊपर ये वाली परमिशन जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। यूज़र की परमिशन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू 5 हो जाएंगी, ग्रुप यूज़र की परमिशन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू 6 हो जाएंगी, एंड अदर यूज़र्स की परमिशन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू नंबर 7 जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी। एंड यू नो दिस 5 represent user,
This number 6 represents group user and number 7 represents other users. And every number contain all three permissions: read, write and execute. Read, write and execute. How? हमने एक टेबल को डिस्कस किया था, उस टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि हर नंबर जो है वो कौन सी परमिशंस को शो करता है। तो यहाँ पे उस टेबल को रिकॉल करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 5 है। तो 5 किसका पेयर है? 4 प्लस 1। 4 प्लस 1 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? मीन्स रीड, राइट की परमिशन नहीं है, और एग्जीक्यूट एक्स। बिकॉज राइट जो है वो 2 के अगेंस्ट आ रहा है। 4 प्लस 1 करें तो हमारे पास 5 आता है, और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी परमिशन जो हैं वो रीड और एग्जीक्यूट को। इस तरह 6 है, तो 6 किसका पेयर बन सकता है? 4 प्लस 2। तो हमारे पास 4 रीड को डिनोट कर रहा है और 2 राइट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप यूजर के पास जो परमिशंस आएंगी वो आएंगी रीड एंड राइट। उसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होगी। ग्रुप यूजर के पास कौन सी होंगी? रीड एंड राइट। नो, ही कैन नॉट एग्जीक्यूट अ फाइल। जबकि 7 जो है 4 प्लस 1 प्लस 2 अगर हम करें तो हमारे पास 7 का नंबर जो है वो बन जाता है। मीन्स के अदर्स जो आपका यूजर है, ही कैन read a file, he can write a file and he can execute a file. आपका अदर यूजर जो है वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। सिंबॉलिक एब्सोल्यूट मोड के अंदर हमने देखा कि आप कोई भी नंबर लिखते हैं, ऑक्टल नंबर लिखते हैं, वो तीनों ऑनर्स, तीनों यूजर्स की परमिशंस को चेंज कर देता है। While in symbolic mode, you can modify a permission of a specific honor. अब किसी एक स्पेसिफिक ऑनर की परमिशंस को अगर चेंज करना चाहते हैं, यू कैन चेंज अ स्पेसिफिक ऑनर परमिशंस बाय यूजिंग सिंबॉलिक मॉड। अब सिंबॉलिक मॉड को यूज करते हुए आप उस स्पेसिफिक ऑनर की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। इट मेक्स यूज ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स टू मॉडिफाई द फाइल परमिशंस। वो कौन से सिंबल्स हैं? देयर आर थ्री सिंबल्स सच एज प्लस, माइनस एंड इक्वल। प्लस आपकी परमिशंस को ऐड करेगा। अगर आप प्लस का सिंबल जो है वो यूज करते हैं तो ये एड्स अ परमिशन टू अ फाइल और डायरेक्टरी। इफ यू यूज माइनस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर को अगर आप यूज करते हैं सिंबॉलिक मोड के अंदर, तो आपका परमिशन जो है, यू कैन रिमूव परमिशन फ्रॉम द स्पेसिफिक यूजर। एंड इफ यू यूज equal operator by using symbolic mode, then you have to set the permission and override the permission set earlier. आप अपनी permissions को override कर देंगे if you use a equal operator. Such as you know, we have three honors. User represents by U, group user represents by G, and other user represents by O. आपके ये तीनों यूजर्स जो हैं वो हम उनको एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ डोनेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो यूजर है वो यू के साथ
रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप यूजर को हम जी के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और आपके अदर यूजर को हम ओ के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने किसी स्पेसिफिक यूजर की परमिशंस को चेंज करना है, तो उस स्पेसिफिक यूजर की परमिशंस को चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 डिफरेंट ऑनर्स जो हैं, 3 डिफरेंट यूजर्स जो हैं, वो कैसे उनकी परमिशंस को आप सेट कर सकते हैं। तो आप यू का सिंबल यूज करते हुए, जी को यूज करते हुए, या ओ को यूज करते हुए आप किसी स्पेसिफिक यूजर की ग्रुप परमिशंस को चेंज कर, एंड इफ यू want to change all users permissions simultaneously, आप सब यूजर्स की, तीनों यूजर्स की परमिशंस को एट अ टाइम चेंज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू राइट ए, अ लेटर ए। आप ए लेटर के साथ ऑल यूजर्स की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम एब्सोल्यूट मोड सॉरी सिंबॉलिक मोड के अंदर चेंज कर रहे, एब्सोल्यूट मोड के अंदर हम चेंज कर रहे थे, वैसे ही हम सिंबॉलिक मोड के अंदर भी बाय यूजिंग ए हम अपनी परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। अब वेरियस ऑनर्स आर रिप्रेजेंटेड एज यू, जी, ओ एंड ए। We will not be using permissions in numbers like 7555 but character like RWX. आप इन सिंबॉलिक मॉड, हम सिंबॉलिक मॉड के अंदर हम नंबर्स को यूज नहीं करेंगे, हम कैरेक्टर को यूज करेंगे अपनी परमिशंस को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप इस यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 यूजर्स हैं, यू, ग्रुप ऑनर ऑफ द फाइल, group user, other user, and all users. And we have 3 operators: plus, minus, and equal, plus, minus, and equal, plus, minus, and equal for all users. आपके पास सब यूजर्स के लिए 3 ऑपरेटर्स हैं। इन तीनों ऑपरेटर्स को किसी भी यूजर के साथ यूज करते हुए आप उसकी परमिशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल के अंदर जाके देखा है कि ls की कमांड को एग्जीक्यूट किया, नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स की लिस्ट मेरे पास शो हो गई। अब मैं किसी एक स्पेसिफिक फाइल की परमिशंस को व्यू करना चाहता हूँ, देन आई हैव टू राइट अ कमांड ls स्पेस माइनस al एंड द नेम ऑफ फाइल। मेरे पास उस फाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी 7 कॉलम्स में, वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे 7 कॉलम्स में वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये उस फाइल की परमिशंस हैं जो इस वक्त उसके ऊपर सेट की हुई हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास ये जो कोई भी फाइल हो गई, कोई भी डायरेक्टरी होगी, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट में, वो डिफाइन करेगा कि आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसी फाइल की है या किसी डायरेक्टरी की। एंड इफ यू हैव अ डैश देन मीन्स इट्स अ फाइल, and if at very first place you find a letter D, it means it's a directory. अगर आप D का लेटर फाइंड करते हैं तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी वो किसी डायरेक्टरी की होगी। ठीक है जी। रिमेनिंग आपके पास जो ये डैशेस और लेटर्स का कम्बिनेशंस होगा, ये 9 होंगे टोटल। तो एवरी यूजर हैव 3 परमिशंस: रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट यूजर के पास 1 2 3, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट कोई भी परमिशन नहीं है। इस तरह ग्रुप यूजर के पास हम देख रहे हैं तो मेरे पास फिर 3 डैशेस का
एक ग्रुप आ रहा है, वहां पे भी कोई परमिशन नहीं है। मैं लास्ट में देखता हूँ मेरे पास जो है वो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, रीड राइट की परमिशन जो है वो ग्रुप यूजर के अदर यूजर के पास है, जबकि उसके अदर यूजर के पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं। अब मैं इन परमिशंस को चेंज करना चाहता हूँ। आई वांट टू चेंज अ परमिशन बाय यूजिंग सिंबॉलिक मॉड। मैं सिंबॉलिक मॉड के जरिए इन परमिशंस को चेंज करना चाहता हूँ। देन आई हैव टू राइट अ कमांड chmod and I have to change a specific यूजर कमांड परमिशंस। मैं किसी एक स्पेसिफिक यूजर की परमिशंस को चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक कमांड लिख रहा हूँ, डियर स्टूडेंट्स, u प्लस आर डब्ल्यू, जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे u जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यूजर को, यूजर की परमिशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कि मैं यूजर की परमिशंस के अंदर बाय यूजिंग ऑपरेटर प्लस, मैं प्लस के ऑपरेटर को यूज करते हुए उसकी परमिशंस के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ आर एंड डब्ल्यू। मैं उसको अलाउ करना चाहता हूँ कि यूजर जो है वो रीड कर सके अपनी फाइल को, एंड यूजर जो है वो राइट कर सके अपनी फाइल। chmod u plus rw and the name of file। इस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद मैं दोबारा एक कमांड लिखता हूँ, क्या जो मेरे पास पहले परमिशंस थी वो चेंज हुई हैं या नहीं हुई। तो मेरे पास आउटपुट जो आती है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो फर्स्ट यूज़र था उस यूज़र के पास परमिशन जो थी वो कोई परमिशन नहीं थी, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। जबकि इस यू प्लस आर डब्ल्यू की परमिशंस के बाद उस यूज़र के पास जो है वो रीड और राइट की परमिशन जो है उसको असाइन होगी। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रुप यूज़र की परमिशंस भी चेंज नहीं हुई और आपके पास अदर यूज़र की परमिशंस भी चेंज नहीं हुई। मीन्स कि आप किसी स्पेसिफिक यूज़र, इफ यू वांट टू चेंज a permissions to a specific user, then you have to use a mod, symbolic mod। आप सिंबॉलिक मॉड के जरिए आप किसी स्पेसिफिक यूजर की परमिशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इफ आई वांट टू चेंज another permissions, o is equal to r, मीन्स कि मैं आपके अदर यूजर की परमिशंस को ओवरराइड करना चाहता हूँ only read permissions। He can only read a file। Other users can only read a file। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास एग्जिस्टिंग जो है अदर यूजर की परमिशन जो है वो he can read a file and he can write a file, but he cannot execute a file। ये आपके पास यूजर की परमिशन है, यहाँ पे आपके पास ग्रुप यूजर की परमिशन है, और at the end you have other users permissions। chmod o is equal to r, name of file, and here you can see permissions is change। आपकी परमिशन जो है वो चेंज होगी। इस तरह अगर आप किसी स्पेसिफिक यूजर की परमिशंस को रिमूव करना चाहते हैं, such as you want a user cannot read a file, before he can read a file, and after some time you change your mind and you want user cannot read a file, then you have to remove read permissions from the user file। आप यूजर की परमिशंस को चेंज करेंगे, उसके पास पहले रीड की परमिशंस थी, उसको आप रीड की परमिशंस रिमूव करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक फाइल की परमिशंस में से, तो आप यहाँ पे यू लिख रहे हैं chmod के साथ और माइनस का सिंबल यूज करते हुए आप उसकी परमिशंस को चेंज कर रहे हैं। आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग फाइल यू कैन फाइंड अ रिजल्ट।
and you can see user cannot read a file. User can only write a file. But here you can say, sir, if you write a file, then definitely you can read a file. Definitely you can read a file. And if you want to change all users permissions simultaneously, आप सब यूजर्स की परमिशंस को चेंज करना चाहते हैं, सच एज योर एब्सल्यूट मॉड की तरह आप साइमल्टेनियसली यूजर्स की परमिशंस को चेंज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू राइट ऑपरेटर्स विथ लेटर ए। आप कोई भी ऑपरेटर यूज करते हुए लेटर ए के साथ आप किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, तो आपके पास ऑल यूजर्स की परमिशन जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेटर्स चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी एच मॉड ए इज इक्वल टू आर डब्ल्यू नेम ऑफ फाइल। यहाँ पे आपके पास यूजर कैन ओनली राइट अ फाइल, group user cannot read, write, and execute a file, and another user can only read a file. After the executing this command, all the permissions change. You can see here user can read and write a file, group user can read and write a file, and the other user can also read and write a file. तो सिंबॉलिक मॉड को यूज करते हुए आप अपनी फाइल्स की परमिशंस को add. So one another concept that is ownership and group. If you want to change the ownership of a file, and if you want to change a group of file, then you have to write a command chown or chgrp. For changing the ownership of a file or directory, you can use the following command. जैसे हम प्रीवियस chmod की कमांड को यूज कर रहे थे किसी स्पेसिफिक यूजर की स्पेसिफिक परमिशंस को चेंज करने के लिए by using absolute mod or by using symbolic mod. अब हम फाइल की ऑनरशिप को चेंज करना चाहते हैं या आप फाइल के ग्रुप को चेंज करना चाहते हैं, then you have to write a command chown user and the name of file. So by using chown or chgrp, you can change the ownership of a file and you can change the group of a file. लेकिन जब भी आप किसी भी फाइल के ऑनर को चेंज करेंगे या उसके ग्रुप को चेंज करेंगे, देन यू हैव टू राइट अ कमांड बाय यूजिंग सूडो वर्ड। आप सूडो के ज़रिए, बिकॉज यू आर नॉट अ रूट यूज़र, आप अगर रूट यूज़र नहीं है तो आप सूडो कमांड के ज़रिए अपनी फाइल के ऑनर को भी चेंज कर सकते हैं और अपने फाइल के ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रेड हैट के ऑनर्स को चेंज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू राइट अ कमांड sudo chown root and red hat, such as here you can see before the before changing the honor of a file, red hat contains the honor name here, Dr. Hafiz AD, and the group name here, Dr. Hafiz AD. In green box, आपको पता है कि 7 कॉलम्स के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होती है। आपकी फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका फाइल की परमिशंस को डिस्प्ले कर रहा है, सेकंड कॉलम जो है वो हार्ड लिंक है, थर्ड कॉलम जो है वो आपके पास ऑनर ऑफ फाइल कौन है उसकी इंफॉर्मेशन है, फोर्थ कॉलम्स के अंदर आपकी ग्रुप की इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ ग्रुप जो है वो आ जाएगा, थर्ड कॉलम जो है इस तरह सो ऑन जो है आपके पास टाइम है, और उसके बाद आपके पास जो है उसके नंबर ऑफ बाइट्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ बाइट्स, कितनी बाइट का वो डाटा कंटेन करता है, और आपके पास वो फाइल कब क्रिएट हुई और उस फाइल का जो है वो नाम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपके जो रेड
बॉक्सेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ये आपके फाइल के ऑनर की इंफॉर्मेशन है, और ग्रीन बॉक्स के अंदर आपकी फाइल के ग्रुप की इंफॉर्मेशन है। तो इस आप ऑनर को चेंज करना चाहते हैं, then you have to write a command by using sudo chon and your specific name, उस वो स्पेसिफिक नेम जिस नेम के साथ आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे रूट एंड द नेम ऑफ फाइल, sudo chon root and the name of file, and then I want to check again आपकी फाइल का ऑनर जो है वो चेंज हुआ तो नहीं हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके फाइल का जो ऑनर था वो डॉक्टर हाफिज एडी से जो है वो रूट चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर आप इफ यू वांट टू change a group honor only, then you have to write a command by using word chgrp, stands for change group। आप चेंज ग्रुप की कमांड को यूज करते हुए आप अपने उस स्पेसिफिक यूजर के इंफॉर्मेशन जो है ग्रुप की इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। टाइम अगर इन दोनों कमांड्स को आप यूज करना चाहते हैं, इन केस यू वांट टू चेंज द यूजर एज वेल एज ग्रुप फॉर अ फाइल और डायरेक्टरी, देन यू हैव टू यूज अ कमांड chon। आप chon की कमांड वर्ड को यूज करते हुए आप वो इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन आप लिखना चाहते हैं, जिसको आप चेंज करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक ना फाइल के, आप यहाँ पे लिखेंगे। आपकी ऑनर की इंफॉर्मेशन जो है वो स्पेसिफिक वर्ड के साथ चेंज हो जाएगी, और आफ्टर द कॉलन आपके ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन थी वो रूट रूट थी, आपका यूज़र की इंफॉर्मेशन भी चेंज हो चुकी थी, आपके ग्रुप यूज़र की इंफॉर्मेशन जो चेंज हो चुकी थी उनको अगेन रिप्लेस कर दिया है आपकी कमांड के साथ। तो वो आपका जो है वो दोबारा रिप्लेस हो ऑनर और ग्रुप यूज़र के साथ। तो Linux being a multi-user system uses a permissions and ownership for a security। अगर हम इसको समराइज करें आपके फाइल परमिशंस के लेक्चर्स को, तो यहाँ पे हम देखते हैं देर आर थ्री यूजर्स types on a Linux, that is user, group and other, and every user contain three different permissions such as read, write and execute. The permissions on a file can change by chmod command, which can be further divided into absolute mode and symbolic mode। chmod के कमांड को यूज करते हुए आप अपनी फाइल के परमिशंस को चेंज कर सकते हैं by using absolute mode and by using symbolic mode। And if you want to change the ownership or a group of information, then you have to write a command chon or chgrp। So this is all for today's lecture, and see you in next lecture. Take care. Allah Hafiz.